All right, fine. So let us begin for today. Now today we shall be talking about actually microprocessor. What is a microprocessor? We don't. I mean, won't be discussing only Intel 8085, but in general, what a microprocessor is, what are various components, and then we will move towards one specific type of microprocessor, that is Intel 8085 microprocessor and its architecture. So what all is covered? Main features of this 8085 microprocessor. What is the block diagram? I mean, we will be seeing all these components. What are various components of a microprocessor? Pin diagram. What are various buses, registers, ALU? You would have heard of a term called arithmetic and logical units. So where it is in the microprocessor and what all does it do? What memory there exists for a microprocessor? Then what is a stack memory? Timing and control circuitry for a microprocessor, timing states, and instruction cycles. How does the instruction cycle work? And then various commands for a microprocessor, and how does microprocessor execute various commands. So we will be doing a few of them. So all these are actually the contents of this unit. So don't worry. I mean, these are just a quick overview of what is going to come up, and then we shall be doing all these things in detail. So when buying a laptop or a mobile phone, even you would have seen its specifications. And when seeing specification, you must have paid attention to one very important component of a mobile phone, which is microprocessor. And I don't think I need to tell you what is microprocessor nowadays, because everyone have a mobile phone, and nowadays those mobile phones are smartphones based upon some operating system, and of course these all employ or require microprocessors. We shall just be understanding here the very preliminary working of those microprocessors, because what actually we make out of a microprocessor is a lot more than what we are going to do here. But here, what we shall be actually doing is trying to establish the connection between the digital circuits which we have studied so far, and how those digital circuits work in collaboration with with the microprocessor to do various tasks. So that's what we will be doing. We'll be just understanding how that binary zeros and ones which we were talking are capable of doing various tasks, various things. So as we see that microprocessor is a digital device, means it works on only binary voltages, that is 0 or 1. So how does that work? That's what we want to do here.
Before we move to the working of microprocessor, let us have a general quick introduction of microprocessor. What is a microprocessor? So I don't think, I mean, I need to formally define it, but yes, it is for sure that this microprocessor, or the invention of microprocessor, is one of the greatest inventions of the previous century. I mean, 20th century, we can say. And that is going to continue in 21st century as well. The developments in this technology of integrated circuits was actually during it was during the developments of IC techniques that Intel Corporation of America first of all came up with an microprocessor device. So the first ever microprocessor which was built was by Intel company, and I don't think I need to really tell you something about Intel, because it's a very well-known, well-established company nowadays, and it's a sort of brand name in the area of microprocessors. So Intel in 1971 came up with its digital device, which is Intel 4004, which had almost like 2300 transistors on a chip, which were fabricated on a silicon gate, and that was P-channel MOSFET. Now, I hope I have given you a quick overview of what is a MOSFET. So, how did Intel guys design a microprocessor? So, they used MOS technology, and then it was later on, this thing was later on named as, so first they designed a circuit actually to do certain task, and this circuit was containing something like 2300 transistors on a small chip. So that was really a big establishment, because you know what is the size of a transistor if you go to lab and then see what is the size of a typical PNP transistor or NPN transistor, which we see as a single transistor, that is of the order of few millimeters, right? It's close to 7 to 8 millimeter in size. So now putting 2300 such transistors in a small chip, which is something like a few centimeter by few centimeter, is really a challenging task, and that was attained by Intel company, and that's why this was a revolution. And this was a revolution in a sense that before this, people were using the electronics for doing computations, but those and circuits or that electronics was very big in size. A computer was typically of the size of a room, and then people actually were using vacuum tubes for doing or for designing those circuit elements for doing calculations. So that is why this thing, when packed into a very small chip of few centimeter cross few centimeter, that was a big thing for Intel. And now, since then, you can see that these microprocessors can be seen almost everywhere. And whether these are your mobile phones, whether those are your laboratory instruments, whether many kinds of consumer products, even your calculators, then aircraft system, automobiles, your cars, toys, even. Since there are a lot of things around us which actually uses these microprocessors in one or the other way. So that's how you can realize the significance of this great invention. So microprocessor, first of all, designed its first microprocessor in Intel designed its microprocessor in 1971. That was 4004, which was a 4-bit microprocessor actually. First microprocessor, you can say. Then in 1972, same company designed 8008 microprocessor, which was actually a 8-bit more microprocessor. Then in 1974, this is a quick chronological overview of how various microprocessors came into existence. Then P-channel, first one was P-channel, first two were P-channel. Then in 1974, Intel came up with N-channel MOSFET, N-channel
microprocessor. Then in 1974, another microprocessor came from Motorola company, which was 5-volt supply based. So this was 6800. There was another semiconductor manufacturer, which is known as National Semiconductor. So they were first to actually come up with the 16-bit microprocessor in 1974. So now you can see how within just a few years, the microprocessor technology just grew very fast, and it's growing even till date. Even nowadays, you are finding a lot of new and good microprocessors. Then you can see these are various companies and various microprocessors. First 32-bit microprocessor was Intel 80386. You can see. Then was Intel Pentium series. I don't know how many of you have heard of this. And Intel Pentium series used to be very popular when we were in our universities or colleges. So Intel Pentium based processors, somewhere around 2000 or 1993 it came up, and then this became popular in close to 2000s in India. Then you would have heard of a problem called Y2K problem. I don't know if you have heard of it or not. So that was associated with Intel Pentium series. Then, I mean, that was a textbook stuff. So they did the review up to 2002 or so. Then there were other developments in the area. Then Intel company came up with Pentium 4, Intel Pentium 4 processor. So basically what companies were trying to do, you can see here, how many ICs, how many transistors are there on a particular chip. So you can just get an idea that this Pentium 4 had 42 million transistors on a single chip, and it had a clock speed of up to 3.8 gigahertz. Then Intel Xenon series of processors. These were dual core processors. Core means how many sort of CPUs you can say. So one chip has more than one CPUs. That is how you can see. I mean, more than one CPUs are there on a single chip. So that's the level of compactness which is coming in these ICs. And even these Xenon, Intel Xenon processors are in use nowadays for many parallel computing systems like big workstations or clusters. These Intel Xenon based processors are highly deployed and highly useful, and they can have as large as 10 cores on a single chip. Means you have one chip and you have 10 CPUs on one chip. So that is how much powerful these processors can be. So this is something really interesting, right? Then I hope you would have heard of this Intel Core 2 Duo. That was another set of processors which came somewhere around 2006. I had one of my first laptop which was based on Intel Core 2 Duo. Nowadays, you are hearing of Intel I series, Core i3, i5, i7. Anyone of you who have been buying a laptop, they must have come across these things. So, I mean, there is a lot of development in area of microprocessors. And of course, what we are going to study here in this unit is very little of what actually exists. So we are going to do Intel 8085. Oh, see, that was somewhere after this. 8080, then 8085 microprocessor. And then after that, a lot has been done. And of course, that is not up to the scope of this course. If you have to really go to the details, you probably would have to do some PG course on microprocessors or some BTech kind of stuff. Or even people go for further higher studies doing PhDs in designing and understanding even software. Hardware part is itself complicated. So that's a long way ahead. But yes, here we want to see the very basics कि भाई जो डिजिटल सर्किट्स हमने पढ़े हैं उनको किस तरह से एक माइक्रो प्रोसेसर हैंडल करता है और उसके अंदर कैसे वो जीरोस और वंस जो है वो काम करते हैं. ठीक है, that's what is the idea here.
So if you want to understand more about microprocessors, here is the link. They have very systematically compiled all the Intel microprocessors. You can just Google Intel microprocessor series or something like this. Then you can find out a lot of literature about that. What are the details? What changes are there while going from one generation to other? So that all is available there. Uh, uh, then, I mean, when we are talking of microprocessors and talking only about Intel is not fair. There is one company which is very popular. It's not very popular, but they are very good microprocessors. And when you have a tight budget, uh, they are not very expensive as well. Intel microprocessors are very expensive. I mean, expensive in comparison to AMD. Advanced Micro Devices, AMD stands for. So they also were not very far from Intel, but somehow it's a marketing thing where Intel took over and they captured the whole market. Uh, and of course, there are small nitty gritty things. Let's not talk about that. But yes, AMD based processors are also there in market, and they are also very good processors, and many devices come with AMD microprocessors as well. So if you are looking for similar specifications, then you can find out that AMD devices are, or AMD based computers are way cheaper, I mean reasonably lower priced than corresponding technically specification Intel based laptops. For example, I was just scanning a laptop for one of my friends. He just wanted me to suggest one suitable model. So I was finding that microprocessor based upon AMD, which is Ryzen series. So I mean, okay, in 1971, let us first talk about this. Then I will be talking about that small experience. So this is the first microprocessor from AMD series. So in 1971, Intel came up with the first microprocessor. So AMD was not very, I mean, much behind. And that was also a 4-bit microprocessor. That is how it was looking like. So you can see how AMD 4-bit ALU, arithmetic logical units. So there are series. Then in 1987 onwards, there was another series which was launched by AMD company, 2900 series. Then there was another series. There is a lot of development in this area also. I mean, this company also did a lot of advancements. AMD, another series, AMX 86, that was 32-bit, I think. K5 architecture, 95. These are just year of implementation or year of, you could say, launch. Then K6 architectures, these are some architectures for various microprocessors from AMD. One of the very popular series is this Ryzen series. So there is this Ryzen series, which is very popular. Say these are like Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, like this. Okay. So if you compare them with Intel, say Core 3, Intel i3, i5, i7, so they are rather competitive and comparable with each other. But when you go to buy a AMD based Ryzen 3 laptop, that is going to be cheaper than Intel Core i3. Sorry, Intel i3, yeah. And if you go for a Ryzen 5, it's again comparable to in terms of its specification and technical performance. It is comparable to Intel Core i5. There are many benchmarking tests available online, so you can compare. So, but the pricing is reasonably, really. I mean, there this is quite low in comparison to the laptops based upon i5. So, I mean, in case you are going to buy laptops, you can consider, you may consider this AMD based processors as well. There is no technical, I mean, there are a lot of miscommunications regarding these. They heat up and blah, blah. But I personally am using one of the laptops based upon AMD. I don't find any such kind of issue with that.
Rather, for doing the calculations which I do for research purpose, these machines are really good. So I mean, anyhow, so that's about overview of what is going in the market of microprocessors. Those were the microprocessors I just highlighted here for mainly the computers, laptops, or desktops. There are now another set of whole series of microprocessors which are now being used for mobile phones. You would have heard the names like Snapdragon, Qualcomm. All those are the microprocessor designing companies for mobile phones. So those microprocessors again are all also uh, in themselves what I would say uh, a whole range which is to be studied. But okay, we are not going into microprocessors. So in itself, microprocessors, you can do one full BTech specialization on microprocessor, even MTech specialization on microprocessors. So that's not the content here. We here just want to do a very quick overview of what a microprocessor is, what it contains, what are the essential elements of a microprocessor, what is its task, then what kind of upgradations are there, that is not beyond, that is not within the scope of this course. So what an ideal microprocessor should be? So basically an ideal microprocessor should be some IC, of course integrated chip, which has some n number of inputs, maybe some m number of outputs, some input and output pins. It should have some inbuilt ROM, read only memory, you know. Again, there is something called RAM. We will be talking about that. So what should be your inputs? The inputs kahan se microprocessor le? It can take inputs from either switches. For example, there may be some single press switches or different kinds of switches. Even your keyboard is a collection of many switches. It can be sensors. A microprocessor may take inputs from sensors. For example, oral microphone. Now you can see microprocessors can take what you call voice recognition. Huh? Your mobiles are using voice recognition. You can just speak and it will type the information. So from where the input is coming? It is coming from some sensor, which we may say is a microphone. Then it may be some analog to digital converters. There may be keyboards, tapes, etc., etc. So inputs means microprocessor will have some input pins, and it can take, those pins can take input from various kinds of input devices, and then output may be sent to various other kind of devices. Like it can be giving output to some actuators, some lamps, alarms, indicators, monitor, speaker, various different kinds of devices are there. So that's what a ideal microprocessor is. Now the question is, okay, okay, this ROM is included in a microprocessor which stores this sequence of operations. So ये जो इसकी अपनी internal ROM होती है माइक्रोप्रोसेसर में, इंटरनल अपना एक सेट ऑफ सीक्वेंसेस होता है कि भाई व्हाट कमांड विल डू व्हाट, तो वो अपना एक इसका इंटरनल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है. इसलिए इट हैज सम इनबिल्ट मेमोरी विच इज रोम. वो रोम होगा, रीड ओनली मेमोरी. उसको यूजर कभी भी वो नहीं कर सकता, वो मैन्युफैक्चरर नहीं बनाया होता है. ओके, आई मीन फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द इंस्ट्रक्शन, this will be the task, sort of this. So that is defined with the help of ROM. ये अपने आप में थोड़ा और पेचीदा मामला हो सकता है, इस पे हम नहीं चलेंगे भी इतनी डिटेल में, बट या इट हैज सम इनबिल्ट ROM. एंड दोज इंस्ट्रक्शंस और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस जो स्टोर होते हैं उसमें, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, एंड दिस यूजुअली इज इन द फॉर्म ऑफ binary codes. Not usually but always. I mean, because microprocessor is a digital device, so it contains the instructions in the form of binary codes. This will be clear shortly in the coming slides. तो माइक्रोप्रोसेसर में ये जो इनपुट आउटपुट पिन होती है, अब इनको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. देयर इज समथिंग लाइक अ डेटा बस इन माइक्रोप्रोसेसर. सो दिस शोज just symbolic representation how a data bus is represented. This represents a 8-bit data bus, and arrow in both directions means it is a bidirectional data bus.
So there are certain pins which are there for data, and those pins are called data bus because they carry the data. This is another way of representing 8-bit data bus. And again, arrow directing both ways means these pins can be used to read in the data or send out the data. Input output दोनों काम करेगी data bus. ये हम पढ़ ही चुके हैं. बाई डायरेक्शनल डेटा बस इंटरनली किस तरह से दिखती है, कैसे काम करती है. So I don't need to get into that. There is another bus, means set of pins in microprocessor which are called address bus. वो क्या करेंगी, किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस लोड करेंगी और डेटा बस जो है उस मेमोरी लोकेशन से डेटा पिक करेगी. So something like okay 1 2 3 4, मान लीजिए एक 4-बिट रजिस्टर है कोई 1 2 3, तो यहाँ पे डेटा स्टोर्ड है Q3 Q2 Q1 Q0, क्योंकि हमने पढ़ा है ना ये सब रजिस्टर्स. तो ये मेरे डेटा पिन्स है मान लो, पर इन सभी को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एड्रेस जो इसको एनेबल करेगा इन फ्लिप फ्लॉप्स को. सपोज दिस इज फ्लिप फ्लॉप्स, तो इसको एनेबल करने के लिए एक एड्रेस भी चाहिए होगा, इसका कोई स्पेसिफिक एड्रेस होगा. सो एड्रेस बस विल कैरी द एड्रेस टू दिस लोकेशन एंड डेटा बस विल ट्रांसफर द डेटा. तो एड्रेस बस कैन बी 16-बिट डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी मेमोरी है. वैसे बड़ी छोटी अकॉर्डिंगली एड्रेस बस हो सकती है, और डेटा बस भी डिफरेंट साइज की हो सकती है. तो दोनों का कोई जरूरी नहीं है कि ये 16 है तो ये 8 होगी, ये दोनों 8 होनी चाहिए. The size depends upon how big is the memory. The size of the data bus will be bigger accordingly. And what is the data size? तो usually 8-bit जो हम बात कर रहे थे ना, 4004 was a 4-bit microprocessor. तो वहां पे डेटा बस 4-बिट होनी थी, क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन 4-बिट की होगी, वहां पे 4-बिट की कोई इंस्ट्रक्शन होगी हर चीज. और 8-बिट के लिए इट विल बी 8-बिट. इफ योर मशीन इज 16-बिट देन दैट इज गोइंग टू बी 16-बिट एंड सो ऑन. ठीक है. सो एड्रेस बस और डेटा बस, इज दिस क्लियर? एड्रेस बस का जो कनेक्शन है एक ही तरफ को है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ जिसका भी एड्रेस डिसाइड करेगा वहां मेमोरी पे वो जाएगा और एड्रेस बस के थ्रू उस मेमोरी को एक्सेस करेगा और डेटा बस से डेटा उठाएगा. एड्रेस बस की डायरेक्शन माइक्रो प्रोसेसर की तरफ को नहीं है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में अपनी कोई एज सच मेमोरी नहीं है. ओनली एक रोम है जो कि इसके इंटरनल ऑपरेशंस के लिए काम करेगी. एक्सटर्नल मेमोरी के लिए सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड करेगा कि कहां से डेटा उठाना है. इसलिए एड्रेस बस सिर्फ आउटवर्ड्स ही डेटा भेजेगी, अंदर उससे डेटा नहीं आ सकता है. ठीक है, क्योंकि अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अपनी कोई मेमोरी नहीं है जो एक्सेस होनी है सच. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एड्रेस बस. इज दिस क्लियर? समझ आ रहा है आप लोगों को? आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग इट और नॉट. इज दिस क्लियर? समझ आ रहा है? अच्छा, चलो, वेरी गुड. तो आगे चलते हैं. बहुत सारे तो दिस इज द टिपिकल डायग्राम, पहले भी हमने देखा था ना. तो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस से कनेक्ट करेगा डेटा बस. देयर कैन बी वन IO पोर्ट, कॉमन मान लीजिए एक है, वो किस तरह से डेटा डिफरेंट जगहों पे डेटा बस. तो दिस विल बी फर्दर डेटा बस. सो ब्लॉक डायग्राम इस तरह से हम बनाते हैं, मतलब. ठीक है, तो ये डेटा बस दर्शा रहा है आपकी कि IO पोर्ट में डेटा बस इस तरह से कनेक्ट होगी. तो कीबोर्ड में भी डेटा बस ही होगी ना, जो आपकी कीबोर्ड की वायर है. नाउअडेज डेटा बस फिजिकली वायरलेस भी होती है ना, वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड, बट ऑफ कोर्स दे हैव सम रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, समथिंग लाइक दैट. तो उसमें भी अपना एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है कैसे डेटा ट्रांसफर होना है. तो इस तरह से हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होती हैं. आगे चलते हैं. There is something called control bus. Control bus क्या होती है? For proper operation of a microprocessor, it must have some set of control lines, both input and output control lines. This set of lines is called control bus, which is used to synchronize the operation of the microprocessor with the operation of external circuitry. Control bus किसके लिए काम करेगी? Synchronize करने के लिए. ठीक है. For example, control line is required to inform whether the address on the address bus at a particular time is meant for memory location or for IO. तो ये सब काम कंट्रोल बस करती है. एक एडिशनल एक डेटा लाइन होगी, मतलब which is called control bus. है क्या ये buses? They are like connection pins, connecting pins होंगी. ये सिर्फ वो वोल्टेज से, जैसे कंट्रोल बस पे सिग्नल आया, उसका अपना एक कोड होगा. वो कोड मान लीजिए रेफर करता है मेमोरी को,
तो वो कोड मान लीजिए, लेट अस हाइपोथेटिकल मान लेते हैं 101, 3 बिट मान लो कंट्रोल बस है। सपोज दिस रेफर्स टू ए कोडिंग है, मान लीजिए ये कोड है मेमोरी के लिए कि हार्ड डिस्क से डेटा उठाना है। एड्रेस सेम होगा, जब ये कंट्रोल बस जो है इसका सिग्नल 101 होगा तो एड्रेस सेम होगा, मान लीजिए से 11001001 1 2 3 4 5 6, कोई 8 बिट एड्रेस है मान लीजिए, वो सेम है, पर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज देयर ऑन कंट्रोल बस, दैट सेम एड्रेस में रेफर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस और टू सम मेमोरी लोकेशन, है ना। तो वो कंट्रोल बस की वजह से हम की साथ हम काम करते हैं या उसकी हेल्प से वो डिसाइड करते हैं। सिंस द एड्रेस बस इज कॉमन फॉर बोथ, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए भी एड्रेस बस कॉमन होगी और क्या बोलते हैं मेमोरी लोकेशंस के लिए भी एड्रेस और डेटा बस कॉमन होंगी, एड्रेस बस कॉमन होगी, ठीक है। एक ही सेट ऑफ वायर्स होंगे, वही पैरेलली कनेक्ट होंगे अलग अलग जगहों पे, तो कौन सी वाली एक्सेस होनी है वो डिसाइड करेगी हमारी कंट्रोल बस। और कंट्रोल बस कैसे डिसाइड करेगी? कंट्रोल बस का कोई अपने सिग्नल हो सकते हैं, वो किसी तरह से उनका एक कॉम्बिनेशन मे बी वाया सर्टेन से एंड गेट, they may be enabling the chip of that particular location. There may be a what do you call enable connection, like right chip enable, which may be enabling that particular chip. ओके तो वो चिप इनपुट डिवाइस के लिए भी हो सकती है, आउटपुट के लिए भी, तो वो किसकी वजह से कहां से होता है वो व्हाट कंट्रोल दैट इज अ कंट्रोल बस, ठीक है। इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर जिसकी हम बात करेंगे अभी आगे डिटेल में, देयर इज अ लाइन कॉल्ड IO और M बार, ठीक है, उसको हम कहेंगे कंट्रोल लाइन। ये जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकेंड, वेयर इज दैट, ओके ये सो एक सिंगल लाइन होती है, वी विल बी लुकिंग एट दैट ऑल्सो। तो इसमें क्या होगा जब आपका IO 0 होगा, सो ओके इफ द सिग्नल ऑन दिस लाइन इज 1, द एड्रेस इज मेंट फॉर इनपुट आउटपुट, ये वाला देखिए, एंड जबकि जब ये 0 होगा दैट इज मेंट फॉर मेमोरी। तो IO सॉरी ये जो आपकी IO और M बार एक ही पिन होगी, मतलब उसमें से निकली हुई, जिसको हम बोलेंगे IO/M बार। तो जब ये 0 होगी तो ये मेमोरी के लिए होगी कि मेमोरी से उठाना है डेटा उसने, और जब ये 1 होगी तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा उठाएगा, ठीक है, मतलब कीबोर्ड से उठाएगा या फिर हार्ड डिस्क से उठाएगा, वो डिपेंड करेगा IO पिन क्या है, ठीक है। Another example of control signal is facility of interrupting the execution of a normal sequence of a program. माइक्रोप्रोसेसर में एक और एडिशनल कंट्रोल बस होती है, कंट्रोल बस में एक पिन होती है विच इज कॉल्ड इंटरप्ट सिग्नल, INTR बोलते हैं उसको। वो किस लिए होगी कि माइक्रोप्रोसेसर मान लीजिए कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, अगर आपने इंटरप्ट सिग्नल प्रेस किया, कोई बटन है मान लो, तो वो क्या करेगा, उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट कर देगा और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी या अफेक्ट हो जाएगी। मतलब इंटरप्ट सिग्नल वो अलग अलग तरह से यूज करते हैं प्रोग्रामर्स की, इंटरप्ट सिग्नल किस प्रकार से यूज करना है हमने। फॉर दिस पर्पज देयर इज ए कंट्रोल लाइन विच वी कॉल INTR। तो वो हम माइक्रो प्रोसेसर का जब पिन आउट डायग्राम देखेंगे, वन ऑफ द सिंपलेस्ट वन 8085A का, तो हम इन सभी पिन्स को देखेंगे वहां पे, पर अभी सिर्फ क्विक आइडिया कि क्या क्या पिन्स होती हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है, या उनके क्या क्या काम होते हैं। When IO device wants to interrupt the microprocessor, it sends out 1 over this line. तो जब भी कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस से हम इंटरप्ट सिग्नल भेजना चाहते हैं तो वो क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर की उस लाइन पे 1 सिग्नल जाएगा। सो माइक्रो प्रोसेसर उस सिग्नल को देखेगा, ओ 1 वोल्ट आई, एक हाई वोल्टेज आई उस पे, तो वो क्या करेगा, अपना प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूशन को रोक देगा या अकॉर्डिंगली जो भी इंस्ट्रक्शन फर्दर है उसको वो चेक करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओवरहीट हो गया मान लो माइक्रो प्रोसेसर आपका, तो क्या होगा, इंटरप्ट सिग्नल ऑन हो जाएगा सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो उससे माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अपने आप को जो है वो जो भी टास्क कर रहा है उसको रोक देगा, सो एज टू अवॉइड दी
ओवरहीटिंग। तो इस तरह से अलग अलग तरीके के काम के लिए इंटरप्ट पिन का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। सिमिलरली और क्या है इंटरप्ट, सिमिलरली INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। INTA पिन क्या है, ये क्या करेगी, मान लीजिए आपने इंटरप्ट सिग्नल पे 1 रेज किया, मतलब इंटरप्ट सिग्नल रेज किया, तो माइक्रो प्रोसेसर में एक पिन होगी INTA, तो वो वहां पे एक्नॉलेज करेगा कि भाई मैंने प्रोग्राम जो है वो मैंने इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है, आई एम जस्ट टेकिंग सम एक्शन। वो उसके रोम में इंटरनली बिल्ट इन प्रोग्राम बनाया होता है कि अच्छा अगर इंटरप्ट सिग्नल आए तो क्या करना है, वो मैन्युफैक्चरर ने बनाया होता है। वो कैसे काम करेगा, है अंदर सारी डिजिटल सर्किटरी ही है, ठीक है। तो उसको उस उतनी डीप में नहीं हम जाएंगे, बट यस देयर इज सम डिजिटल सर्किटरी। इट्स लाइक ओके अप्लाइड सम इनपुट और वो रीड करी उसने, और अंदर एक और सर्किट है, उस इनपुट के हिसाब से सीक्वेंशियल सर्किट पढ़े थे ना हमने, व्हाट यू कॉल कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब इनपुट आई, अंदर सीक्वेंशियल सर्किट मतलब कुछ एक प्री डिफाइंड मेमोरी है कुछ, जिसके हिसाब से उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए कोई उसका एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स होगा। सो फर्स्ट रिस्पॉन्स इज इंटरप्ट एक्नॉलेज, कि वो एक्नॉलेज करेगा इंटरप्ट सिग्नल आया। Then this INTR is an input control line, whereas INTA is an output control line, ठीक है। So this communication protocol of making a request and then waiting for the response from a microprocessor is called handshaking. इसको हैंडशेकिंग बोलते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं ये प्रोग्रामर्स कि भाई, या फिर जो हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर पे भी काम करते हैं, हैंडशेकिंग। लाइक ओके यहां से कोई सिग्नल गया 1, इंटरप्ट मैंने ऑन किया, अंदर से भी कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा वो उसको 1 ही रखेगा, और अगर बहुत देर तक नहीं आया तो देयर में बी सम एडिशनल थिंग कि कोई मॉल फंक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है। माइक्रो प्रोसेसर ने अगर एक्नॉलेज करेगा तो इसका मतलब इट इज वर्किंग फाइन, इट हैज एक्नॉलेज्ड कि कोई सिग्नल आया था और अब अकॉर्डिंगली इट विल टेक सम एक्शन। सो दैट इज कॉल्ड हैंडशेकिंग इन आउट, ठीक है। इज दिस क्लियर, समझ आ रहा है कुछ कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एनी क्वेश्चन, किसी का सवाल तो नहीं है कोई इसमें? एनी क्वेश्चन सो फार प्लीज? Am I audible there? Yes, sir. अच्छा, तो कोई सवाल नहीं है? Okay, if there is no question, then there are some other type of pins. There is one thing, something called DMA, direct memory access. So usually क्या होता है कि कोई भी डेटा जो है माइक्रो प्रोसेसर किसी मेमोरी लोकेशन से माइक्रो प्रोसेसर में जाता है, माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके फिर इनपुट आउटपुट कहीं भी ले जाना है वहां जाता है। बट कुछ कुछ केसेस में हमें माइक्रो प्रोसेसर की इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, because that will occupy the time of microprocessor and unnecessarily the memory of the microprocessor. तो उन केसेस में हमें हम यूज करते हैं DMA का, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, कि इनपुट से आउटपुट को या जहां भी हमने उस मेमोरी को एक्सेस करना है वो बिना माइक्रोप्रोसेसर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के DMA बटन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं मान लीजिए कुछ अपने कीबोर्ड में लिख रहा हूं तो फटाफट से स्क्रीन पे जा रहा है ना, सेव हो रहा है, हार्ड डिस्क में भी है, स्क्रीन पे भी जा रहा है, एंड सो ऑन। सो ऑन दोस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस DMA में बी ए गुड ऑप्शन, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, है ना। तो DMA इज देयर, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड होल्ड इनपुट लाइन। तो DMA होल्ड इनपुट लाइन क्या करेगी? सो इस केस में क्या होगा, नॉर्मली डेटा ट्रांसफर वही कि मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा और फिर तब वो मेमोरी में कहीं जाएगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। दिस प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसफर इज स्लो एज आई ऑलरेडी टोल्ड। ओके, फॉर अ पर्पज ऑफ फॉर दिस पर्पज माइक्रो प्रोसेसर में एक पिन होती है होल्ड पिन, ठीक है। होल्ड पिन क्या करेगी, जब भी होल्ड अप है तो माइक्रो प्रोसेसर कुछ काम नहीं करेगा अपना, वो रुकेगा और इनपुट आउटपुट डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी, मतलब होल्ड पिन जब ऑन होगी। दिस इज एक्नॉलेजमेंट बाय माइक्रोप्रोसेसर
ओके, दिस इज एक्नॉलेज्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर गिविंग लॉजिकल 1 ऑन HLDA। सेम चीज कि आप होल्ड बटन इनपुट भेजते हो माइक्रोप्रोसेसर पे, हाई, मतलब यू वांट ए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो माइक्रोप्रोसेसर को मतलब आप बोल रहे हो रुक जा, होल्ड। आप कम्युनिकेशन में कैसे करते हो, डिजिटली कैसे करोगे, एक तार होगी, वायर है, पिन है, उस पे वोल्टेज, हाई वोल्टेज आपने लगाई, तो माइक्रोप्रोसेसर विल सेंड होल्ड एक्नॉलेज कि अच्छा ठीक है, आई एक्नॉलेज्ड। जैसे ही आपको होल्ड एक्नॉलेज आएगा, माइक्रोप्रोसेसर विल रिलीज द डेटा बस और एड्रेस बस आपके लिए, सो दैट यू कैन एक्सेस इट डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस आप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज जस्ट बाय अप्लाइंग जीरोस एंड वंस यू आर एबल टू डू वेरियस टास्क्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, है ना। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब ध्यान से अगर आप और डिटेल में जाओगे तो ऑफ कोर्स द सर्किटरी इज नॉट दैट सिंपल। उसके अंदर आपको पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लग रही है, मतलब तो कैसा सर्किट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो अपने आप में एक अलग ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर की डिटेलिंग समझनी है ना, पर है वो, इट इम्प्लॉइज ऑल दोज बेसिक सर्किट्स, वही हमारे मेमोरी रजिस्टर्स होंगे, एक्सक्लूसिव और गेट्स होंगे, एडर होगा, सबट्रैक्टर होगा, एंड सो ऑन, कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिटल सर्किट्स होगा। सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ही उसको हम जो है उन कॉम्बिनेशन से ही माइक्रो प्रोसेसर में वो काम करते हैं। बट एनी हाउ उस पे नहीं जाएंगे। हाँ, कैसे वो जीरोस और वंस की मदद से हमारे लिए टास्क करता है, वो हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम का एक बेसिक ऑपरेशन, वही सेम चीज कि भाई एक माइक्रो प्रोसेसर एक सेंट्रली प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। देन देयर इज एन एड्रेस बस, इट इज कनेक्टेड टू कॉमन एड्रेस बस जो है वो मेमोरी पे भी कनेक्ट होगी, रैम रोम जो भी आपकी है, रैम रोम माइक्रो प्रोसेसर से बाहर होगी, इट इज अदर देन माइक्रो प्रोसेसर, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सो अंदर अपनी इसकी रोम है, वो अलग चीज है, ठीक है, वो इंटरनल बिल्ट इन है, उसके बाहर और भी रोम हो सकती है, मतलब ठीक है। और एक डेटा बस है ऊपर, देखो यू कैन सी। एड्रेस बस और डेटा बस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एड्रेस बस में सिंगल एरो होंगे, माइक्रो प्रोसेसर से हमेशा बाहर की तरफ को जाएंगे, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर विल एड्रेस, इट विल असाइन द एड्रेस, और जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे उनकी तरफ अंदर को होगा एरो, मींस इनकी तरफ को एड्रेस आएगा, मतलब पीछे से एड्रेस लगाएगा माइक्रो प्रोसेसर, तो वो पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस करेगा, ठीक है। और डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल होगी, सिमिलरली कंट्रोल बस इज ऑल्सो बाई डायरेक्शनल। कंट्रोल बस क्यों बाई डायरेक्शनल होगी, मान लीजिए आपने यहां से इनपुट सिग्नल देना है इंटरप्ट का, तो भाई माइक्रो प्रोसेसर में एक पिन होगी ना, इनपुट पिन, सिमिलरली कंट्रोल बस पे एक इंटरप्ट एक्नॉलेज का भी पिन होगा, होल्ड का पिन होगा, होल्ड एक्नॉलेज का पिन होगा। सो ऑल दोस पिन्स आर देयर, सो दैट इज व्हाई इट हैज टू बी बाई डायरेक्शनल। सिमिलरली डेटा बस भी बाई डायरेक्शनल होगी, क्योंकि डेटा माइक्रो प्रोसेसर ने अंदर से पढ़ना भी हो सकता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से या मेमोरी से, और बाहर भी भेजना हो सकता है आफ्टर प्रोसेसिंग। मान लो आप एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हो, सो एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हो तो यू विल हैव टू रीड फर्स्ट 2 नंबर्स, तो माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से 2 नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे, मींस डेटा बस हैज टू बी इन्वॉल्व, माइक्रो प्रोसेसर विल रीड डेटा। सिमिलरली प्रोसेस जब हो जाएगा तो वो डेटा को आउटपुट भेजेगा, आंसर क्या आया, तो वो उसी डेटा बस पे बाहर की तरफ को लोड होगा डेटा। सो दैट इज बाई डायरेक्शनल, है ना। सो किस तरह से कंसिडर एक सिंपल सा टास्क एज्यूम करते हैं कि कैसे करना है, कैसे माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। इनपुट ए नंबर फ्रॉम इनपुट पोर्ट 1, मान लीजिए कोई पोर्ट यहाँ पे है, ये वाला सपोज, ये वाला सपोज, यहाँ पे कोई नंबर पढ़ना है, एड दिस, एड टू दिस कंटेंट मेमोरी लोकेशन, ये मान लीजिए कोई मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, हेक्साडेसिमल में है, सो 0 मीन्स 0000, ये मेमोरी एड्रेस है 16 बिट, क्योंकि हेक्साडेसिमल में है ना, तो हर एक नंबर यहाँ पे 4 बिट है। ए मीन्स 9 तक हमारा आता है ना, देन ए इज 10, तो 10 क्या होगा, 8 होता है 2⁻3, 1001, ये 8 होता है ना, सो 9 होगा, सॉरी 1000 इज 8, 2⁻3, 1001 इज 9, 10 होगा 1010, आर यू गेटिंग इट। तो इस तरह से उस
what you call, just a minute, let me erase this. I hope this goes, yeah, 1010। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एड्रेस मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है कि 16 बिट जो डेटा एड्रेस बस है उसकी 16 पिन्स होंगी और 16 पिन्स पे 1010। इस तरह 2 के लिए क्या लगेगा, 0010। एंड एफ मीन्स आई थिंक 1111 होता है, एफ चेक कर लेना। तो उसकी कोई 16 पिन होंगी एड्रेस उसमें, जस्ट अ मोमेंट, सभी पे इस ऑर्डर में कुछ लगेगा कि इस पे 000 एंड सो ऑन। तो उसके हिसाब से मेरी जो मेमोरी होगी वहां पे वो लोकेशन जो रजिस्टर होगा 8 बिट का या जितने बिट का भी है वो एनेबल हो जाएगा। ठीक है, सो पहले ये क्या बोल रहा है कि भाई इनपुट नंबर पढ़े वो कहां से, कोई मेमोरी लोकेशन इनपुट डिवाइस है 01 और उसको कहां पे ऐड करना है, कोई मेमोरी लोकेशन है मेरी हार्ड डिस्क में या किसी भी मेमोरी जो भी स्टोरेज है मेरे पास उसमें, यहाँ पे उसको स्टोर करना है और वही रिजल्ट को कहां पे, आउटपुट डिवाइस 2 में डालना है उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि कीबोर्ड से मेरा कोई नंबर रीड हो, वो हार्ड डिस्क में सेव हो, प्लस सेम टाइम पे वो कहां पे आए, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो, इजंट इट। तो इस प्रकार के काम माइक्रो प्रोसेसर कर सकता है। ठीक है, तो कैसे करेगा, वो क्या करेगा, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स, आई थिंक, या तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। पर इस तरह से वो माइक्रो प्रोसेसर काम करता है कि, तो ये करेगा क्या माइक्रो प्रोसेसर, चलो क्विकली अगर देखें तो एक छोटा सा प्रोग्राम होगा कोई माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। तो पहली इंस्ट्रक्शन उसकी होनी चाहिए कि वो इनपुट डिवाइस के लिए पहले उसको एनेबल करे, कंट्रोल सिग्नल भेजे, फिर उसका एड्रेस होगा कोई इनपुट डिवाइस का, उस एड्रेस से उसको एक्सेस करे, फिर उसके ऊपर जो भी डेटा आएगा उसको कहीं लोड करे, फिर उसको मेमोरी लोकेशन में डाले, ऑल दैट, आई मीन दैट इज ओके, दैट इज गोइंग टू फॉलो अप इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। सो लेट अस नॉट गेट इनटू दिस इन डिटेल राइट नाउ। तो जो भी माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बिकॉज दिस इज अ डिजिटल डिवाइस एंड इट वर्क्स ऑन ओनली 2 वोल्टेज लेवल, जीरोस एंड वन, बाइनरी सिग्नल पे काम करेगी। तो जो भी ऑपरेशंस माइक्रो प्रोसेसर कर सकता है, those are all done with the help of digital signals only. Therefore, every operation of a microprocessor actually can be done in the form of a binary code. तो अपने microprocessor को बताना ये करो, तो आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते हो, it has to be actually given to microprocessor in the form of a binary instruction. ठीक है, so जो भी हमारे पास जनरल माइक्रोप्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ ऑप कोड्स, उनको हम बोलते हैं ऑपरेशन कोड्स। तो वो ऑपरेशन कोड्स क्या होते हैं, बाइनरी डेटा होता है और माइक्रो प्रोसेसर ने हर एक कोड के लिए एक टास्क डिफाइन किया होता है माइक्रो प्रोसेसर में। जो भी उसका मैन्युफैक्चरर है, हमने कहा था ना शुरू में कि एक रोम होती है अपनी उसकी, तो वो जो कोड्स हमने दिए उसके हिसाब से उस रोम में कन्वर्शन ऑफ टास्क रखी होती है। तो हर एक काम के लिए अपना एक कोड होता है, वी आर गोइंग टू सी दिस शॉर्टली। तो वो उनको हम कहते हैं ऑप कोड्स। सिमिलरली एड्रेसेस ऑफ वेरियस मेमोरीज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर आल्सो गिवन इन बाइनरी फॉर्म। तो वही जो मैंने अभी पीछे बताया कि एड्रेस ये होगा, तो एक्चुअल में ये एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर ऐसे नहीं देखेगा, उसको माइक्रो प्रोसेसर देखेगा वो 16 बिट जो मैंने आपको दिखाया था उस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। तो वो सब कन्वर्टर्स हमारे पास होते हैं, दैट इज फाइन। टास्क टू बी परफॉर्म्ड इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ ऑप कोड्स, जो मैंने अभी बताया आपको, ऑपरेशन कोड्स जिसको हम बोलते हैं, एंड ऑफ कोर्स एड्रेस ऑफ द मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और डेटा क्या हमें करना है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम उनको पुट करेंगे, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात हम करने लगे अब, है ना, कि भाई कौन सी ऑर्डर में क्या करना है हमारे माइक्रो प्रोसेसर ने, दैट इज डन with the help of those opcodes put in certain sequence, and that sequence of those opcodes is called program, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो हम जो प्रोग्रामिंग करते आए थे, जैसे आपने फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग करी, अब आप बोलोगे अच्छा वहां हमने कहीं जीरोस वंस तो कुछ करे नहीं, है ना। तो वो जीरोस वन इसलिए नहीं करे क्योंकि
हमारे जो प्रोग्राम्स हैं दे आर बेस्ड अपॉन सर्टेन व्हाट यू कॉल निमोनिक्स, है ना, वो किसी ने हमारे लिए अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिए हैं। बट जब आप उसको कंपाइल करते थे ना प्रोग्राम को, देयर आर समथिंग कॉल्ड कंपाइलर्स। तो वो जो कंपाइलर्स हैं वो हमारे अंग्रेजी में लिखे हुए प्रोग्राम को माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम्स में बदलेगा। फिर वो प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं बाइनरी फॉर्म में माइक्रो प्रोसेसर में जाएंगे, और हमने जिस भाषा में उसको दिया है उस भाषा में, उस भाषा को वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके तब माइक्रो प्रोसेसर वो काम करेगा। इट्स लाइक ओके, माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड्स जीरोज एंड वंस, है ना, और हमें आती है इंग्लिश। मान लो आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, मान लो आप गए फ्रांस में, और कोई व्यक्ति है जिसको फ्रेंच आती है, और आपको क्या आती है, आपको हिंदी आती है ओनली, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे उससे? तो मुझे तो हिंदी आती है, तो मुझे एक मिडिल मैन लेना पड़ेगा जिसको हिंदी और इंग्लिश या हिंदी और फ्रेंच दोनों की नॉलेज हो। वो हिंदी में मेरी इंस्ट्रक्शंस ले ले और उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट करके बता दे। सो ऑल दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर्स। जितने भी कंपाइलर्स होते हैं, तो वो फर्दर कंपाइलर लिखने वाले, कंपाइलर्स और ऑल्सो सॉफ्टवेयर्स, तो कंपाइलर जो लिखते हैं वो अकॉर्डिंगली कौन सी लैंग्वेज है उसके हिसाब से उन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। समझ आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग दिस? हाँ, कोई सवाल है किसी का भी, क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? नो क्वेश्चन, फाइन। तो अच्छा, एक जो टास्क अभी हम पिछली स्लाइड पे डिस्कस कर रहे थे उसको देखते हैं। क्या काम था? हमने बोला कि भाई इनपुट ए नंबर फ्रॉम ए पोर्ट से वन, इट विल हैव टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। माइक्रो प्रोसेसर के लिए ये दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई अच्छा इनपुट ऑपरेशन करना है उसने, ठीक है, इनपुट ऑपरेशन। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई मुझे किसी कौन से पोर्ट से, तो भाई इनपुट लेनी है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बोलता है इनपुट लेनी है, उसका अपना एक कोड होगा। इनपुट, इनपुट के लिए किसी ने डिफाइन किया होगा, मैन्युफैक्चरर ने, इनपुट के लिए ये कोड है, ठीक है। फिर बोलेगा अच्छा इनपुट, बट लेनी कहां से है, वेदर टू रीड फ्रॉम मेमोरी, वेदर टू रीड फ्रॉम इनपुट डिवाइस, वेदर टू रीड फ्रॉम समथिंग एल्स, स्टोरेज या कुछ भी। तो दूसरा कोड होगा, दूसरा पार्ट उस इंफॉर्मेशन का क्या होगा, एड्रेस ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर इनपुट इज टू बी रेड। तो दूसरा लोड करेंगे हम एड्रेस उसमें। This information is specified using 2 bytes. So in term, अगर हमारी byte means 8 bit, a byte means 8 bit. So first byte will be code corresponding to input, and second byte will be code corresponding to the address. So first byte क्या होगा, op code, operation code. What is the operation? Input. Operation क्या है? Input. तो माइक्रो प्रोसेसर को पता चलेगा कि अच्छा इनपुट लेनी है मैंने, तो वो इनपुट पिंस को एक्टिवेट कर देगा या डेटा बस को इनपुट की तरह यूज करने लग जाएगा। हमने पढ़ा था ना बाई डायरेक्शनल डेटा बस। अब थोड़ा सा उसको समझते हैं। देखो ये था ना, इनपुट की तरह कब एक्ट करेगी ये, जब ये जो मेरे ट्राई स्टेट बफर्स हैं, ये वाले जो ट्राई स्टेट बफर्स हैं, ये जब एक्टिवेट होंगे, मतलब इनके ऊपर अगर ये मेरी, यू कैन सी दिस वन, ये जो मेरी वोल्टेज है ना, या ये जो वोल्टेज है, दोनों जो है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होनी थी। तो जैसे आपने बोला इनपुट, तो ये इसको 1 कर देगा और इसको 0 कर देगा। तो मेरी डेटा बस इनपुट लेने के लिए तैयार है। जो भी मेरे इनपुट पोर्ट पे डेटा हम अप्लाई करेंगे, वो डेटा इस इनपुट बस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट जैसे वो कोड लगाया तो डेटा बस को उसने एक्टिवेट कर दिया, और कहां से डेटा लेना है वो उसने उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, दूसरा क्या था ये हम कह रहे हैं ऑप कोड, और दूसरा बाइट क्या बताएगा कि कहां से उठाना है नंबर। तो वहां पे वो एड्रेस बस पे पहले तो ऑप कोड ने डेटा बस को एक्टिवेट कर दिया इनपुट के लिए, दूसरा एड्रेस बस पे वो एड्रेस लोड कर दिया ऑप कोड ने कि भाई अच्छा हमें कहां से डेटा उठाना है। तो एड्रेस लोड कर दिया, तो उसने उस पर्टिकुलर मेमोरी को एनेबल कर दिया होगा, उस पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया होगा। ठीक है, सो दैट्स योर फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग में क्या करेगा,
एड द कंटेंट्स टू मेमोरी। तो जैसे ही उसने एक्टिवेट किया, इट विल वेट कि वहां से कोई इनपुट आए। जैसे ही वो इनपुट आ गई, डेटा बस से वो लोड हो गई माइक्रो प्रोसेसर में। टेम्परेरीली उसमें कुछ रजिस्टर्स होते हैं विच यू कॉल एक्यूमुलेटर। ये जो है ना एक्यूमुलेटर, उसमें वो टेम्परेरीली स्टोर हो गया डेटा। अब ये क्या करेगा, उस एक्यूमुलेटर पे जो डेटा है उसको दूसरा टास्क हम क्या देंगे कि भाई ये जो नंबर है, ये जो डेटा है, ये स्टोर करना है मुझे उस मेमोरी लोकेशन में। तो फिर माइक्रो प्रोसेसर अगली इंस्ट्रक्शन पढ़ के क्या बोलेगा, स्टोरेज की, उसको डेटा ट्रांसफर करना है ना, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होगी। दैट विल ऑल्सो बी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। वो क्या करेगी, आउटपुट की इंस्ट्रक्शन होगी, ऑप कोड विल बी कोरस्पॉन्डिंग टू आउटपुट। और एड्रेस बस पे क्या लोड करेगा, वो एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर दिस डेटा हैज टू बी ट्रांसफर्ड। तो वो करके वो अकॉर्डिंगली वो डेटा वहां पे स्टोर कर देगा, isn't it? और थर्ड इंस्ट्रक्शन, आउटपुट द रिजल्ट टू आउटपुट पोर्ट। वही आई मीन तीसरी इंस्ट्रक्शन क्या थी, आउटपुट पोर्ट पे भी डालना था वही डेटा। तो ये क्या करेगा, सेम एक्यूमुलेटर का डेटा को राइट ओवर राइट नहीं करेगा वो, या मूव नहीं करेगा, उसी को ही सेम किसी पोर्ट 2 पे एक अगली इंस्ट्रक्शन में एड्रेस बस से पोर्ट 2 के एड्रेस को लोड करेगा, पोर्ट 2 को एनेबल करेगा और वही डेटा को पोर्ट 2 पे भी लोड कर देगा। So that is how microprocessor is going to work. Is it clear? क्या बोल रहा हूं मैं, समझ आ रहा है आपको? This is how the microprocessor is going to do the work. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैंड इन हैंड वर्क करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर लिखा होना चाहिए और सॉफ्टवेयर में क्या क्या क्लैरिटी माइक्रो प्रोसेसर को बतानी पड़ेगी ताकि वो जो भी काम आपने माइक्रो प्रोसेसर को दिया है उसको एग्जीक्यूट कर पाए। बहुत सारी बारी हम गलत, अगर कुछ भी मिस्टेक होगी तो माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड या कुछ ऐसा। जब आप फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो बहुत सारी बारी ये भी सिचुएशन आई होगी, मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस को गलत तरीके से दिया है, वो इंस्ट्रक्शंस उसकी कमांड में प्री डिफाइंड कमांड्स में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो एरर कोड जनरेट कर देगा। वो भी एक तरह के कंट्रोल सिग्नल्स है ना कंट्रोल बस में, कि एरर कोड है। ठीक है, इज दिस क्लियर? जो यहां तक मैं कहानी समझाया आपको, समझ आई आपको? कोई सवाल है किसी का? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन ओवर व्हाट वी डिड टिल नाउ? कैन यू हियर मी? आर यू कंफर्टेबल विद व्हाट वी डिड? समझ आया आप लोगों को? चलो, इसके बाद आप लोगों को क्लास है क्या कोई? डू यू हैव अनदर क्लास और यू हैव गैप नाउ? अरे कोई अनम्यूट करके ही बोल दो, तुम्हारी चैट वेट करता रहूंगा क्या मैं? यस सर, 2 बजे है क्लास। 2 बजे क्लास है? यस सर। ओके, तब तक फ्री हो? यस सर। So can I take 5 more minutes? यस सर। हाँ, 5 मिनट ले रहा हूँ क्योंकि तुम लोग भी बहुत टाइम लगाते हो मेरी क्लास में आने को, है ना? चलो एनीवे, सो थोड़ा और पढ़ लेते हैं बिकॉज वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे कुछ रियलाइज हो रहा है कि हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो ये कुछ कमांड्स हैं, देखो, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड बेसिक ऑपरेशंस। ये कुछ कोड्स हैं, जिसने भी माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर के लिए मान लीजिए 0000, ये मेमोरी एड्रेस है इस तरह से, राइट? और मेमोरी कंटेंट्स ये हेक्स जहां भी लिखा है मतलब हेक्साडेसिमल। आई होप यू आर फैमिलियर विद दैट नंबरिंग। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद A B C D E F, तो 4 बिट इंस्ट्रक्शन मतलब वो। ठीक है, तो इनपुट ऑप कोड क्या है? मान लीजिए ये है आपका ऑप कोड DB। DB किसके लिए है? मान लीजिए इनपुट के लिए। ये किसी ने डिफाइन किया होगा, मैन्युफैक्चरर ने, कि DB अगर कोड में सॉफ्टवेयर में किसी ने DB लिखा है, DB मतलब उसके आप 4 बिट D के निकाल लेना क्या आते हैं, 4 बिट B के निकाल लेना क्या आते हैं, ABCD हेक्सा से निकाल ही सकते हो ना। तो सिमिलरली इनपुट पोर्ट नंबर से 01, ऐड टू मेमोरी ये ऑप कोड है, इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आउटपुट ऑफ कोड, अच्छा ऐड टू मेमोरी मतलब ओके इस मेमोरी में ऐड करना है 86। ओके, सिमिलरली दिस इज अनदर ऑप कोड, ऑपरेशन कोड फॉर आउटपुट। दिस इज अनदर आउटपुट पोर्ट नंबर 2,
तो इस तरह आई मीन ये पिछला जो प्रोग्राम है उसके लिए बाइनरी प्रोग्राम किस तरह से आपका दिखना चाहिए, सो दैट इज हाउ आई मीन इज इट गिवन समवेयर, या ये उसी प्रोग्राम को इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करेगा इसका। इन इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन पढ़ते हैं। ये मैंने इधर ऑप कोड ये वो सब डिफाइन किए, डी बी ये वो सभी। अब आप इसको देखें, ये सिस्टमेटिकली कैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर काम करेगा और हार्डवेयर काम करेगा। पहले तो माइक्रो प्रोसेसर सेंड्स एड्रेस 0000H ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, और ये कंटेंट्स ऑफ 0000H मेमोरी लोकेशंस आर रिसीव्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर सेंड्स आउट द नेक्स्ट एड्रेस। ये क्या बोल रहे हैं हम कि भाई वो जो प्रोग्राम है जो माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस देनी है वो भी तो कहीं पे स्टोर होनी है ना, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो वही बोल रहा है कि पहली इंस्ट्रक्शन जो है ये 001, ये सॉफ्टवेयर स्टोर है, मान लो इसमें कोई मेमोरी लोकेशन है, इसमें ये इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है। तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले इसको रीड करेगा, और ये इंस्ट्रक्शन क्या काम करने के लिए है, ऑप कोड है इनपुट का, ये बोलने का मतलब है। फिर ये देखेगा दूसरा कि अच्छा इनपुट तो है पर कहां से रीड करना है, तो इस मेमोरी लोकेशन में उस पोर्ट का एड्रेस होगा। तीसरी इंस्ट्रक्शन ये होगी कि जो भी डेटा आता है उसको मेमोरी में ऐड करना है। चौथी इंस्ट्रक्शन होगी उसको आउटपुट में भी लिखना है, एंड सो ऑन। तो ये किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर करेगा, पहले उसमें 1A, यहां पे समझो इसको, देखो पहले माइक्रो प्रोसेसर ने वहां से इसको रीड किया प्रोग्राम को। 1B में क्या करेगा ये कि भाई पहला प्रोग्राम की पहली इंस्ट्रक्शन मेरी मेमोरी में कहां स्टोर होगी, यहां पे थी स्टोर्ड, ठीक है। दूसरी काम उससे उसने क्या किया, उसको देखा और अच्छा देखा कि वो क्या काम करने के लिए है, वो है इनपुट के लिए, ठीक है। दूसरा उसने क्या किया, फिर जो मेमोरी लोकेशन 001 है जहां पे मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है हमने माइक्रो प्रोसेसर वाला, उससे उसने क्या किया, वहां से देखा कि क्या है नेक्स्ट उसमें मेमोरी में। तो माइक्रो प्रोसेसर देखेगा 2B, सो 1A 1B, ठीक है, कि उसने यहां से 1B का मतलब है इनपुट, उसने टास्क लोड कर दिया कि एड्रेस बस को एनेबल कर दिया, ठीक है। 2A के कहां से डेटा रीड करना है, 2B मतलब उसने फिर क्या किया कि भाई जिस मेमोरी लोकेशन से डेटा रीड करना है वो थी इनपुट पोर्ट, तो 2C में उसने इनपुट पोर्ट को एक्टिवेट कर दिया। देन इनपुट पोर्ट से डेटा आया, वो डेटा को उसने एक्यूमुलेटर में स्टोर किया। देन अगला वाला 3A, माइक्रो प्रोसेसर ने अगला प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन पढ़ी कि भाई वो स्टोर करना था उसको कहीं मेमोरी लोकेशन में, तो उसने मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पढ़ा, एंड देन I mean this is how you can see one by one how microprocessor reads the program and then keeps on executing those programs and then doing the tasks as specified, ठीक है। तो इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शंस पढ़ेगा, और जो जो उसके हिसाब से टास्क बताया गया है उन इंस्ट्रक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कोड हैं उसमें, उनको एग्जीक्यूट करके वो काम करके कंप्लीट करेगा। इज दिस क्लियर, समझ आया क्या कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, कैसे वर्क कर रहा है। आरपी जैन की किताब में इसको और ध्यान से पढ़िएगा एक बारी जाके, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, आई कैन हेल्प, इफ यू अंडरस्टूड इट देन दैट्स ग्रेट। क्लियर, चलो क्लियर है तो बहुत बढ़िया। आप इसको एक बारी उससे पढ़ भी लीजिएगा जाके, ठीक है। कल हम बात करते हैं कुछ और माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशंस के बारे में, कि क्या क्या और ऑपरेशंस होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में और किस तरह से वो एग्जीक्यूट करता है माइक्रो प्रोसेसर। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। अटेंडेंस फटाफट मुझे बोलिए आप अपनी, मतलब आई विल बी डूइंग इट थ्रू ओरल वे अगेन टुडे, तो यस सर नो सर करके बोलना। आकृति, यस सर। आकृति इज प्रेजेंट, अच्छा। अभी कश्यप एब्सेंट, आदर्श एब्सेंट, अदिति प्रेजेंट सर। अनिका, यस सर। अंशिका, यस सर।
अंशुल कुमार एब्सेंट, आरती, Present, sir. दीक्षा, Yes, sir. दीक्षा, Yes, sir. ओके, दिशा, Yes, sir. दिया, Present, sir. ज्योति, Yes, sir. कनिका, Yes, sir. मुकुल, मुकुल एब्सेंट, निशांत, Yes, sir. पल्लवी, Yes, sir. दीक्षित, Yes, sir. प्रियंका, प्रियंका एब्सेंट, सुभाष, Yes, sir. तन्वी एब्सेंट, तुषार एब्सेंट, यशिका, Yes, sir. मोहित, Yes, sir. दिव्यांशी, Present, sir. प्रांजल, Yes, sir. शुभ, Yes, sir. सोनाली, Yes, sir. अंशुल कुमार शर्मा, Yes, sir. आरुषि, Present, sir. यांशु एब्सेंट, अनन्या, Present, sir. ओके, वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन है आपके, कल पूछिएगा क्लास में, तभी समझ आएगा आपको ध्यान से, अगर कंफ्यूजन रहा तो ये समझ नहीं आएगा, ठीक है।